Hello and once again welcome to SmartWork Labs. My name is Anupam. We are 100 odd days away from prelims 2022. Today is March 1st and I understand a lot of you have switched to exclusive prelims preparation from today. So it is very important that we take all the right steps over the next 100 days, 95 days, whatever days are left, so that we ensure our seat in the mains exam this year. और मेंस तो लिखना ही है यार, उसके बिना कोई मजा नहीं. So through this video, I'm speaking to people who are first timers or who are struggling to clear their prelims for the past couple of years, and they really want to write mains and crack this exam, right? So over the next 95 or 98 odd days that are left, we are going to make a plan in such a way that it should incorporate 3 to 4 revisions of everything that that needs to be done. Then a good number of practice through MCQs, approximately 300 questions at least for every subject, and a test series as well, the prelims test series, right? Along with this, we will cover around 15 months of current affairs through monthly magazines or your own notes if you have made through the newspaper, and we will revise that as well for a couple of times at least. So 3-4 steps are there. It's not very difficult. The problem is that we don't know exactly where to go, how to go about it. And if we do these 3-4 steps, if we take these 3-4 steps in an effective manner, there is no reason we're not going to write mains. Overall, after in this 100 days, you give me the next 45-50 days very sincerely, and together we will ensure that you're going to write mains this year. और वही करना है, ठीक है? So as I said, the revision plan, the strategy overall over the next 100 days will include 3 to 4 revisions. और ये अगर आप अपना प्लान बनाए तो भी करना है और इस प्लान को फॉलो करें तो भी करना है. Practice through MCQs, and I will tell you the difference between practice and taking the test. Taking a test is not a practice of how to approach a question. Taking a test is a practice of how to approach the test paper or on the exam day exactly, right? Then approximately 15 months of current affairs and a test series. ये 4 चीजें हैं along with all the subjects that we are supposed to do, जिसमें हम reference books, जो basic reference books हैं, we are going to focus only on those, and that is sufficient. The point to understand over here is the kind of questions that are being asked either in current affairs or subjects like modern history and all, make it essential that we cover the standard sources which are NCERTs primarily and certain standard reference books like Lakshmikant and Spectrum and all that in such a way that उसमें से कोई भी क्वेश्चन आए तो वो मिस ना हो जाए हमारा. Because we cannot really rely on current affairs 100% anymore. कुछ भी आ रहा है आजकल. And in the end, we have to clear the prelims exam. So हमें ज़रूरत भी नहीं है कि हम 100% उसको ready करके रखें. No, not required at all, right? And this plan is such that अगर आप next 45 days उसको thoroughly follow कर लेते हैं, we are going to be in such a comfortable position. In fact, we'll be in a comfortable position in April first week itself. That in April and May, if you wish, you can allot around 2 to 3 hours to your mains preparation one more time. चाहे उसमें आपको ऑप्शन रिवाइज करना हो या एथिक्स रिवाइज करना हो या कुछ मेंस के टेस्ट पेपर लिखने हो. I will also tell you that if keeping in mind only the subjects that are required for prelims, if we focus on them in such a way कि हमारा मेंस की प्रिपरेशन उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए भी साथ में हो जाए, then how much will be covered और burden कितना कम हो जाएगा between prelims and mains, because in the end हमें मेंस भी क्लियर करना है, right? But prelims is the primary thing that needs to be cleared. Unfortunately, सब लोग मेंस पे इतना फोकस करवा देते हैं कि prelims पीछे रह जाता है. And who better to know this than people who have been struggling to clear prelims, जो पिछली बार या पिछले 2-3 बार से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनकी मेंस की तैयारी बहुत अच्छी है. एक बार मेंस लिखने को मिल जाए, they will be in the top 50 ranks. They are such, but prelims नहीं क्लियर हो रहा है. ठीक है, इसमें हम CSAT भी ऐड करेंगे of course, because a lot of people have started flunking in CSAT itself. क्योंकि the focus in the CSAT paper has moved from the basic English passages or reading comprehensions more towards maths as well as the reasoning. तो maths की importance थोड़ी सी बढ़ जाती है. उसको कैसे करें? We are going to cover that as well. And I will be taking some free classes on YouTube for that, which will be offline as well at the SmartWork Lab Center in Old Rajendra Nagar, Delhi. ठीक है?
वो कंप्लीटली फ्री रहेंगी, बिकॉज मैथ्स इज अ लाइफ स्किल और उसके पैसे चार्ज नहीं करने चाहिए। लाइफ स्किल तो फ्री में आना चाहिए आपको। दैट्स लाइक द बेसिक फंडामेंटल राइट सिचुएशन वाली बात है। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट। सो टुडे इज March 1st and our exam, which is prelims 2022, is on June 5th। ठीक है, तो 98 डेज रह जाते हैं, हमें उसका जरूरत नहीं है। वी नीड टू कीप इन माइंड 2 डेडलाइंस। This is for two set of people. One who are completely new to the preparation, as in पहली बार कर रहे हैं, and they are not comfortable with or the preparation altogether, or they have probably just read things once, उससे ज़्यादा नहीं करें. And other set of people who have been preparing for a couple of years and they have a certain good command on certain subjects, at least polity हुआ, जैसे लक्ष्मीकांत 3-4 बार पढ़ लिया आपने and all that, इस टाइप से कुछ एरियाज पे आपकी अच्छी कमांड है. So we will take 2 deadlines in mind. Again, as I used to divide the segment into beginners and pro, ये beginners and pro के लिए ही है. So beginners would be जो अभी start कर रहे हैं, उनकी deadline थोड़ी सी आगे चलेगी, and pro who have been preparing for a couple of years, उनकी deadline थोड़ी सी tight रहेगी. But अगर आप beginner deadline को भी follow करेंगे, being a pro, it is not a problem at all. ठीक है, that's the idea. So एक deadline जो pro के लिए रहेगी वो 31st March, और beginners के लिए वही deadline रहेगी 7th April. एक तो ये याद रखना है हमें. एंड सेकेंड डेडलाइन इन लोगों के लिए, प्रो के लिए रहेगी अप्रोक्सीमेटली 15th अप्रैल, एंड बिगनर्स के लिए रहेगी अराउंड 25th अप्रैल. सो इफ वी फॉलो दीज 2 डेडलाइंस, राइट, उसके बाद आप देखेंगे फॉर प्रो हाउ मेनी डेज विल बी लेफ्ट. दे विल बी अराउंड 50 डेज लेफ्ट. ठीक है, and for beginners there will be around 40 days left for 1 to 2 more revisions. And in these days from today all the way till 25th April we are going to do 2 to 3 revisions already in this. 2 तो करेंगे ही, 3 हो जाएंगे तो वो भी देखते हैं. ठीक है, so these are the 2 deadlines that you have to keep in mind. अंडरस्टैंड पीपल, जिसको भी ये डर है कि अब टाइम कम तो नहीं रह गया, ये डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. इट रियली डज नॉट मैटर मच कि आपने अब तक क्या किया है, बट वॉट आर यू गोइंग टू डू ओवर द नेक्स्ट 100 days एंड स्पेशली ओवर द नेक्स्ट 45 days इज गोइंग टू डिफाइन हाउ द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स ऑफ योर लाइफ विल बी. राइट, सो अगले 100 दिन पे फोकस ज्यादा, पीछे जो हो गया उसको भूल जाइए, फॉरगेट अबाउट दैट, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. नेक्स्ट 100 days कैन बिकम एन इक्वलाइजर फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू अगर आप मेहनत कर लेते हैं. और उसमें आई वुड से दैट द मंथ ऑफ मार्च इज गोइंग टू प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल. द नेक्स्ट 31 days आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीपल. इसमें जितना ज्यादा अपने आप को आप स्ट्रेच कर सकते हैं, कोई होली दिवाली नहीं, कोई यारी दोस्ती नहीं, राइट, कोई घूमना फिरना नहीं, 1 महीने की बात है. राइट, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे ये 1 महीना दो, एंड हम इंश्योर करेंगे कि आप मेंस लिख पाए दोनों मिलके. राइट, दैट्स द आइडिया. सो वो सिचुएशन है. मार्च का महीना इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. इसमें आप 11 घंटे पढ़ें, 12 घंटे पढ़ें, आई एम नॉट सेइंग आप 16 घंटे पढ़ें, वो हो भी नहीं सकता है, वो 2-4 दिन कर लेंगे आप, उसके बाद नहीं हो पाएगा, फॉरगेट अबाउट दैट पार्ट. बट 11 to 12 hours if you stretch yourself just for this 1 month, right, on 1st April you will be so comfortable, राइट, उसके बाद आपको परेशानी नहीं होगी. दिस एग्जाम इज मोर अबाउट स्ट्रेस मैनेजमेंट. राइट, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अप्रैल मई में इतना स्ट्रेस हो जाए लाइफ में कि हम पढ़ ही ना पाए. एंड दिस हैपेंस अ लॉट. अ लॉट ऑफ पीपल गिव अप बिफोर गोइंग टू द एग्जाम इटसेल्फ कि यार नहीं हो रहा है मेरे से, अब ये मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा है, आई एम नॉट एबल टू रिटेन एनीथिंग, आई एम नॉट एबल टू रीड और फोकस ऑन माई प्रिपरेशन. सो 11 to 12 hours, देखो 9.5 hours तो एनीवे वर्किंग आवर होता है, वर्किंग डे होता है किसी का भी, है ना. आई ऑलवेज से दिस, 9.5 hours इज अ वर्किंग डे ऑफ एनी पर्सन हु इज एम्प्लॉयड. ये काम आप लोगों का है, प्रिपरेशन इज योर वर्क. सो 9.5 तो मिनिमम बनता ही है. ठीक है, एंड समटाइम्स एट वर्क ऑल्सो व्हेन देयर इज अ डेडलाइन people stretch, people work a little harder as well. So people also at the workplace go to 11-12 hours. And हम लोग तो कुछ ज्यादा डिफिकल्ट चीज अचीव कर रहे हैं. काम करना ऑफिस में इतना मुश्किल नहीं है. This is very difficult. Since we are aspiring for something more difficult than a general person would do, तो 1-2 घंटा एक्स्ट्रा और देना तो बनता ही है, right? So 11 to 12 hours, if you put in,
वी आर गोइंग टू एंश्योर कि यार इस बार मेंस लिखेंगे हम, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तीन चीजें करनी है, पढ़ना है, रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करनी है और फाइनली फिर टेस्ट देना है। अगर आप ये कर लेते हैं 11-12 घंटे लगा के, आप आराम से ये डेडलाइंस मीट कर पाएंगे। दिस वन एंड दिस वन, दिस इज फॉर प्रो, दिस इज फॉर बिगनर। You'll be very comfortably meeting these deadlines and then you will see that there's no stress in life. और फिर अगले 2 महीने और ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे। In fact, you will not have to study 11 to 12 hours in the month of April and May. Just this month, March, और जिंदगी बदल सकता है आपका ये महीना। अब आप ये सोच लो कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए सब्जेक्ट्स की अगर बात करें, सेम आइडिया, हिस्ट्री पढ़नी है हमें। आई विल टेल यू अबाउट द बुक्स एंड एवरीथिंग, डोंट वरी अबाउट इट, जिसमें एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न एंड आर्ट एंड कल्चर, चारों चीजें पढ़ेंगे हम। ठीक है, देन इंडियन पॉलिटी पढ़ना है हमें, देन इकोनॉमिक्स पढ़ना है हमें। बाय द वे इसका भी एक प्रीलिम्स के लिए क्रैश कोर्स आएगा अप्रैल में। आई एम अ फैकल्टी ऑफ इकोनॉमिक्स एज यू गाइज नो। देन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, environment with mostly focusing on current affairs, basics environment के थोड़े से ही हैं, वो हम देखेंगे कहां से करने हैं, कैसे करने हैं। एंड साइंस एंड टेक, अगेन मोस्टली फोकसिंग ऑन करंट अफेयर्स ओनली। इसके अलावा सीसैट आएगा एंड करंट अफेयर्स आएंगे। ठीक है, सो दीज आर थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू कवर। सो एक एक करके देखना स्टार्ट करते हैं। सो डेडलाइंस याद रखें, 31st, 15th फॉर प्रो एंड 7th and 25th फॉर बिगनर्स। ठीक है, आई विल गिव यू टाइम टू टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू आर नॉट राइटिंग इट डाउन। आई एम ऑन द साइड राइट नाउ। ओके, नाउ सो जो फर्स्ट डेडलाइन है विच इज March 31st एंड April 7th, इसके टारगेट्स देखते हैं पहले। टारगेटेड स्टडी करनी है और एज ए सेड 12 घंटे पढ़ना है। जिसको प्रॉब्लम है 12 घंटे पढ़ने में कि मेरे से नहीं बैठा जाता या मुझे लगता है मैं 12 घंटे पढ़ रही हूं या पढ़ रहा हूं, लेट्स स्टार्ट यूजिंग अ टाइमर फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज। ठीक है, तो आप डेली एक टाइमर बनाइए जिसमें आप अगर 5 मिनट से ज्यादा का ब्रेक ले रहे हैं तो स्टॉप दैट टाइमर एंड देन रिज्यूम अगेन वंस यू स्टार्ट स्टडिंग अगेन। सो वील हैव टू सी कि उसमें 12 घंटे चलें, इफेक्टिवली 12 घंटे चलें, दैट इज द आइडिया। ठीक है, सो 12 घंटे पढ़ने के लिए टारगेट से पहले एक बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। वी हैव 24 आवर्स इन अ डे, 7 to 8 आवर्स सोना है हमें। वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन दिस। ठीक है, नो कॉम्प्रोमाइज व्हाटसोएवर। इससे ज्यादा भी नहीं सोना है, कॉम्प्रोमाइज इससे ज्यादा भी नहीं सोना है। यू डोंट हैव टू स्लीप मोर देन दिस, इससे कम भी सोने की जरूरत नहीं है। आफ्टर दिस ऑल्सो वी हैव अ गुड 16 आवर्स एट हैंड and I'm saying only for 1 month. Let's try to take out 11 to 12 hours out of this. So if we take out 11 to 12 hours out of this, we will have 4 to 5 hours for relaxing or leisure activities, whatever you want to do. ठीक है, तो आराम से निकल सकता है टाइम। Now these 11 to 12 hours, again same concept जो सबसे इफेक्टिव है, दिन को 3 स्लॉट्स में डिवाइड करिए। Let's have 3 slots. एक स्लॉट ये 3 से 4 घंटे का रहेगा इफ यू आर स्टडिंग 11 आवर्स, इफ यू आर स्टडिंग 12 आवर्स देन दिस विल बी 4 आवर्स। ठीक है, सो दिस स्लॉट, वन ऑफ द स्लॉट मस्ट बी फॉर करंट अफेयर्स। इसको छूना ही नहीं है किसी और चीज के लिए। वी विल नॉट एनक्रोच अपॉन दिस स्लॉट विद द सब्जेक्ट्स। वी विल नॉट थिंक यार ये टॉपिक चल रहा है सब्जेक्ट का, इसको पूरा कर लेते हैं, करंट अफेयर्स कल कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है। करंट अफेयर्स का स्लॉट मतलब करंट अफेयर्स का स्लॉट। सब्जेक्ट का जो भी प्लानिंग होनी है इस स्लॉट को दिमाग से हटा के होनी है। वी आर नेवर गोइंग टू मिस आउट ऑन अ करंट अफेयर्स स्लॉट, वो डेली चलना ही है कुछ भी हो जाए। इसके बाद ये दो स्लॉट्स हैं, इसमें एक सब्जेक्ट 1 चलाएंगे, इसमें एक सब्जेक्ट 2 चलाएंगे।
ठीक है, वील टेक 2 सब्जेक्ट्स इन पैरेलल। एक सब्जेक्ट करने से जल्दी हो जाता है, हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, बट वो बड़ा शॉर्ट लिव्ड कॉन्फिडेंस होता है। बिकॉज लेट्स से मॉडर्न इंडिया की आपको स्पेक्ट्रम पढ़नी है या एनसीईआरटी पढ़नी है, तो आप एनसीईआरटी अगर लगातार पढ़ते हैं 8 hours a day, you will finish it in 2 days. But how much will you remember? How much will you retain? नहीं हो पाता है। So it's important that we spread it over a number of days. थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ें instead of doing in one shot. पहली बात तो एक शॉट में करने में जान भी जाती है बड़ी, बहुत बोरिंग लगती है हिस्ट्री बहुत सारे लोगों को, स्पेशली एंशिएंट मेडिवल, और वो करनी है। आई टेल यू व्हाई, एक एक जब सब्जेक्ट में आएंगे अपन। सो वो जरूर करना है। एक साथ बैठने का नंबर नहीं आता कभी कि यार ये तो बहुत बोरिंग है, कैसे पूरे दिन करेंगे इसको, नहीं पढ़ पाएंगे। सो अगर आप थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ते हैं, एक तो कवर हो जाता है विद लेस पेन, एंड सेकेंडली व्हेन यू स्प्रेड इट आउट ओवर अ नंबर ऑफ डेज, एक इम्प्लिसिट रिविजन होता है फ्रॉम द प्रीवियस डे टू टुडे। एक हम एक्सप्लिसिट रिविजन तो एनीवे ही करेंगे, बट अक्सर जब आप लेट्स से फर्स्ट 4 चैप्टर पढ़े आपने, 5th चैप्टर जब आप पढ़ रहे हैं, सो यू विल रिकॉल कि अच्छा कल ये स्टोरी लाइन चल रही थी इसलिए आज ये हो रहा है। सो दैट इम्प्लिसिट रिविजन विल हैपन। इमेजिन इफ यू रीड 8 चैप्टर्स इन अ डे, सो व्हेन यू रीड द 9th चैप्टर नेक्स्ट डे, तो वो जो स्टोरी लाइन है वो कनेक्ट कर पाओगे आप सिर्फ चैप्टर 7, 8, प्रॉब्ली 6, उससे ज्यादा पीछे नहीं जा पाओगे। सो द फर्स्ट 5 चैप्टर्स विल नॉट बी रिवाइज्ड एज सच। तो उसके बाद फिर वो आप तीसरे दिन चौथे दिन भूल जाएंगे। दैट इज वाई डोंट सिट विद द सब्जेक्ट फॉर द एंटायर डे। दिस इज अ रिकमेंडेशन, एज ऑब्वियसली पीपल आर कंफर्टेबल अदरवाइज ऑल्सो, बट आई हैव जनरली फाउंड दिस दैट इफ यू सिट विद द सब्जेक्ट फॉर द एंटायर डे, बोरिंग हो जाता है और या उतना रिटेन नहीं हो पाता जितना होना चाहिए। सो दैट्स वाई दिस इज अ 2 subject प्लान। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डिवाइड योर डे। ठीक है, कोशिश करिए 4 घंटे बैठने के बाद 2 घंटे का ब्रेक लें, और अगर 3 घंटे पढ़ने वाले हैं तो 3 घंटे का ब्रेक हो जाएगा ये, अदरवाइज ये 2 घंटे का ही ब्रेक होगा। एक स्लॉट पढ़िए, फिर एक कंबाइंड 2 घंटे का ब्रेक लें, फिर एक स्लॉट पढ़िए, फिर कंबाइंड 2 घंटे का ब्रेक लें। दैट्स द आइडिया। एंड इफ यू वांट टू स्टडी मोर, देयर इज नोबडी स्टॉपिंग यू। अगर आप पढ़ सकते हैं बिल्कुल पढ़िए, बट 11 to 12 hours गुड इनफ। ठीक है, बट अगर आप ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो दैट टाइम शुड नॉट कम फ्रॉम योर स्लीप टाइम, इट हैज टू कम फ्रॉम योर लीजर टाइम। ये भी ध्यान रखिए। सोना है 7 to 8 hours, इफ यू डोंट स्लीप तो वो भी रिटेंशन में इंपैक्ट करता है। इफ यू डोंट स्लीप इनफ, तो ये मत सोचो कि सर मैं तो 5 घंटे सो के चल जाता है काम, है ना, मैं तो 4 घंटे सो के चल जाता है काम, ऐसा नहीं करेंगे। स्लीप फॉर गुड 7 hours बिकॉज यू आर स्टडिंग। अ लॉट ऑफ पीपल से उनका काम चल जाता है बिकॉज दे आर नॉट इनटू द बिजनेस ऑफ स्टडिंग, है ना। मोदी जी 4 घंटे सो के काम करते हैं, बट मोदी जी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, राइट। सो आपको रिटेन करना है, ब्रेन को रिटेन करने के लिए रेस्ट भी चाहिए, स्लीपिंग इज दैट पॉइंट। सो वो ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू ओवर हियर। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टारगेट्स। आई होप दिस इज क्लियर। इसमें कोई भी डाउट है, यू कैन पुट इट इन द कमेंट्स, और यू कैन गेट इन टच विद मी ऑन द नंबर दैट इज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन राइट नाउ। ठीक है, you can also email me on the email ID on the screen. नंबर वैसे अगर आप यहां भी चाहते हैं तो my number is this. You can always drop in at the center, जिसका लोकेशन आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. It is in Old Rajendra Nagar, बड़ा बाजार रोड पे ही है. ठीक है, you can always come down there and have a discussion with me if you are facing some problem in your preparation over the next 3 months. So coming to the targets, there are 2 things again. We have to cover subjects, we have to cover current affairs. So subject target है first month का subject target है आपको 3 subject cover करने हैं. History, polity and economics. जो pro है उनके लिए 30 days है अपने पास. We have 30 days for pro. And we have April 7th की deadline, which is approximately 37 days for beginners. ठीक है, these 3 subjects. Current affairs की बात करें, again if you have covered certain current affairs, if you have been doing current affairs, पहली बात तो आप current affairs magazine से कर रहे होंगे, so whatever monthly magazine you are covering, उस magazine को follow करिए, but try to see that you are covering a magazine which covers the Hindu a little thoroughly. ठीक है, वो करिए. फ्रॉम माई पार्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट कमिंग आउट विद पीडीएफ्स 1 pagers, जिसमें उस एक मंथ का टॉपिक्स होंगे कि प्रीलिम्स के लिए ये टॉपिक्स न्यूज में है, एंड यू विल हैव टू कवर दोस टॉपिक्स फ्रॉम सम प्लेस. आई एम नॉट गोइंग टू मेक अ मैगजीन, आई डोंट हैव टाइम फॉर दैट ऑनेस्टली. ठीक है, बहुत सारे बच्चों को मेंटर करना होता है, सो आई एम नॉट गोइंग टू मेक अ मैगजीन, आई एम गोइंग टू मेक अ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स जो भी न्यूज में रही है.
सो वट एवर टॉपिक्स आर कवर्ड फ्रॉम योर मैगजीन वो तो आप कर ही लीजिए। उसके अलावा जो भी आपको ये टॉपिक्स बच जाते हैं इस लिस्ट में से, उसको आप कहीं ना कहीं से डेफिनेटली कवर करिए। दिस लिस्ट विल स्टार्ट कमिंग आउट बाय नेक्स्ट वीक। वी विल स्टार्ट विद फेब एंड वी विल गो बैकवर्ड्स। तो पहले फेब की लिस्ट आएगी विच विल बी फ्रीली अवेलेबल ऑनलाइन ऑन द वेबसाइट, ऑन द टेलीग्राम ग्रुप, जो स्मार्ट वर्क लैब्स का टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल है, and at multiple stores, Image Runner stores, the book stores in old Rajendra Nagar, they will be available for free. You can go and pick it up starting next week. ठीक है? So current affairs जो भी आप मैगजीन कर रहे हैं, understand मैगजीन में approximately 100 pages होते हैं. So just do 20 pages in a day, right? और उसको याद करने की कोशिश करेंगे. So don't try to cover half a magazine or a full magazine in 1 or 2 days. वो नहीं होता है. उससे कुछ रिटेन नहीं हो पाएगा, कुछ याद नहीं हो पाएगा. सेम आइडिया, स्प्रेड इट आउट ओवर अ नंबर ऑफ डेज. सो 100 पेजेस, जस्ट डू 20 पेजेस पर डे. वी हैव गुड टाइम अभी एट हैंड. तो अभी अगर हमारे पास 30-35 डेज हैं, इफ यू आर प्रो दैट मीन्स यू वुड बी सीरियस अबाउट योर करंट अफेयर्स एज वेल. अगर आपने थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स कर रखा है तो बहुत ही अच्छी बात है. अगर आपने 1-2 महीने का भी कर रखा है तो इट इज गोइंग टू हेल्प अस अ लॉट. नवंबर दिसंबर की मैगजीन्स आप ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, अक्टूबर की मैगजीन आप ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, बहुत अच्छी बात है. यू कैन सेव अ लिटिल टाइम. अदरवाइज स्पेंड 5 days ऑन अ मैगजीन. इन 30 days यू कैन डू 6 मैगजीन्स आराम से. एंड इन 37 days बिगनर्स कैन डू अराउंड 6 to 7 मैगजीन ऑल्सो. कि बिगनर्स कुड बी अ लिटिल स्लो ऑल्सो. ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे इसमें 6 to 7 months का करंट अफेयर्स कर लें. 6 to 8 months का कोशिश करेंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत आप लोगों ने किया होगा. जिसने कुछ भी नहीं किया है वो 6 महीने कर पाएगा, जिसने थोड़ा बहुत किया है वो 8 महीने कर लेगा. सो ये कौन से 8 महीने होंगे? वील गो बैकवर्ड्स, जिसमें Jan 2022 एंड देन जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दैट इज द 7 months. सो अगर आप 8 महीने करने की कोशिश करें तो जून 21 से, अदरवाइज अगस्त 21 से दिसंबर 21 तक. ठीक है, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू कवर करंट अफेयर्स. सो दीज आर द टारगेट्स. अब इसमें कितना टाइम लगाएं, कौन सी बुक्स पढ़ें? हिस्ट्री की बात कर लेते हैं. आई विल जस्ट इरेज दिस एंड आई एम गोइंग टू एड दीज वन बाय वन. हिस्ट्री में वी हैव 4 areas. There is ancient, there is medieval, there is art and culture. ठीक है, एंशिएंट, मिडिवल, आर्ट एंड कल्चर, इसको हमने एब्रीविएट कर रखा है अपने स्मार्ट वर्क लैब में एज एमैक. एंड देन देयर इज मॉडर्न. राइट, बुक्स कौन सी पढ़नी है? लेट मी गिव यू रेफरेंस बुक्स. ऑल द बुक लिस्ट, रेफरेंस बुक लिस्ट इज ऑल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. एंशिएंट मेडिवल की जो ओल्ड एनसीईआरटी के कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स हैं, अगर आप बहुत ही हार्ड प्रेस्ड हैं कि नहीं मैं करूंगा ही नहीं, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है ऑल दैट, तो एटलीस्ट वो सिलेक्टेड चैप्टर जरूर कर लें. बट वी रेकमेंड कि आप पूरी बुक पढ़ें बिकॉज वी हैव टाइम राइट नाउ. सो फॉर ऑल द एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न वी नीड ओल्ड एनसीईआरटीज, जो आपकी है आर.एस. शर्मा, सतीश चंद्रा एंड बिपिन चंद्रा. So these 3 NCERTs plus 12th NCERTs जो नई वाली आई हैं, themes 12th क्लास की, तीनों की एक एक NCERT है. एंशिएंट की एक है, मेडिवल की एक है, मॉडर्न की एक है, वो करनी है. ठीक है, 3 नंबर. देन मॉडर्न के लिए एडिशनली जो हमें रेफरेंस बुक देखना है वो है स्पेक्ट्रम. अगर पुरानी स्पेक्ट्रम है तो बहुत अच्छी बात है बिकॉज दैट इज अ शॉर्टर बुक. न्यू स्पेक्ट्रम इज अननेसेसरली थिक फॉर नो रीजन, उसको जबरदस्ती अपडेट कर दिया गया है. सो उसमें से सेलेक्टिवली आप पढ़ेंगे. फॉरगेट अबाउट द पार्ट विच इज बिफोर 1857, फॉरगेट अबाउट द पार्ट विच इज आफ्टर 1947. बाकी जो बीच का एरिया है स्पेक्ट्रम से आप वो थोड़ा थोड़ा करेंगे. एंड फॉर आर्ट एंड कल्चर, ये तो मॉडर्न की है. एंशिएंट मेडिवल के लिए कोई एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक नहीं पढ़नी है, सिर्फ एनसीईआरटीज पढ़िए सफिशिएंट है. और आर्ट एंड कल्चर के लिए some people read नितिन सिंघानिया book but I find it too bulky, unnecessary. अगर आप उससे एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर भी पाए तो इट इज नॉट वर्थ स्पेंडिंग योर टाइम ऑन. 600 पेजेस है, कर लेंगे डेफिनेटली, वो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लेंगे आप, बट कोई पॉइंट नहीं है इतना करने का. बट एट द सेम टाइम नितिन सिंघानिया के नोट्स है मार्केट में और ऑनलाइन भी. आई विल एड अ लिंक इन दिस डिस्क्रिप्शन ऑल्सो.
नोट्स अगर आप पढ़ लेते हैं दैट इज ऑल्सो मोर देन सफिशिएंट, स्पेशली इफ यू आर रीडिंग दीज RS शर्मा एंड सतीश चंद्र। फिर आपको नितिन सिंघानिया बुक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट्स द आइडिया। ठीक है, सो दैट्स ऑल। हिस्ट्री में इतना ही पढ़ना है। अब सब लोग कहते हैं कि सर हिस्ट्री में टाइम बहुत लग जाता है। वी आर फॉलोइंग दैट 3 स्लॉट का टाइम। So we'll give 1 slot to the entire history, and that slot will take all 30 days or 37 days whatever we have for history. इसमें अगर हम देखें अब slot wise, let me change the color. Ancient को हम approximately 8-9 days दे देंगे as in 1 slot each, half a day, 4 hours, 8-9 days करिए उसको आराम से, धीरे धीरे करना है। मेडिवल थोड़े से कम चैप्टर्स हैं, अप्रोक्सीमेटली 7 डेज में हो जाएगा। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर आपको ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है विच इज अ वेरी थिन बुक, एंड नितिन सिंघानिया के नोट्स पढ़ने हैं, तो आई विल गिव अगेन 7 days टू इट, राइट। और सब लोगों ने थोड़ा बहुत तो शायद रीड करा हो, नहीं भी करा हो तो दिस इज अ गुड इनफ टाइम। एंड वट एवर टाइम इज लेफ्ट 14 and 8 22। सो फॉर प्रो उन लोगों ने डेफिनेटली स्पेक्ट्रम पढ़ी होगी, मॉडर्न पढ़ी होगी, राइट, एनसीईआरटी पढ़ी होगी, तो 8 days उनके लिए बहुत रहेंगे। एंड फॉर द बिगिनर्स बिकॉज दे हैव टू डू स्पेक्ट्रम फ्रॉम द बिगिनिंग, दे वुड रिक्वायर अ लिटिल एक्स्ट्रा टाइम। सो जो एक्स्ट्रा 7 days हैं वो आप बिगिनर्स के लिए स्पेक्ट्रम कवर करने के लिए सफिशिएंट रहेगा। 15 दिन में आप आराम से स्पेक्ट्रम भी पढ़ सकते हैं और बिपिन चंद्रा की एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं। डू नॉट थिंक कि सर हम तमिलनाडु कर लेंगे एंशिएंट मिडिवल के लिए। तमिलनाडु सिर्फ नाम के लिए करने वाली बात है यार। ठीक है, सम पीपल स्टार्टेड विद दिस आइडिया कि तमिलनाडु कर लो, एटलीस्ट आपका एंशिएंट मिडिवल कवर हो जाएगा, बट एटलीस्ट कवर होने के नंबर नहीं मिलते यूपीएससी में, ये भी समझने वाली बात है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो रेफरेंस बुक है, स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक है, वो करें। यूपीएससी इज नॉट गोइंग टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम तमिलनाडु बोर्ड बुक। Why would UPSC give preference to one board books over the other boards that are there in the country? ये तो एक unwarranted advantage हो जाएगा for the people who are studying in that particular board, right? तो UPSC will never do that. गलती से एक आध क्वेश्चन आ गया था 2 साल पहले, वो तमिलनाडु बोर्ड में इसलिए मिल गया क्योंकि वो करंट अफेयर्स में भी था, और क्योंकि तमिलनाडु बोर्ड तमिलनाडु से रिलेटेड हिस्ट्री को ज्यादा फोकस करेगी। देयर वाज समथिंग इन द न्यूज 3 years ago अप्रोक्सीमेटली जो साउथ इंडिया की हिस्ट्री से रिलेटेड था, और उसके कॉन्टेक्स्ट में तमिलनाडु किसी को मिल गया, अरे अरे ये तो तमिलनाडु इस बुक में है, सो पीपल स्टार्टेड रीडिंग दिस बुक। सो लेट्स नॉट डू दैट। ठीक है, जरूरत नहीं है उसकी करने की। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, आप ये सब करके बैठे हैं, तो शौक के लिए पढ़ लीजिए। अगर पढ़ना भी है तो स्पेसिफिकली जो साउथ इंडिया में डायनेस्टीज वगैरह थी वो चैप्टर्स पढ़िएगा, अदरवाइज कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है एज सच। ठीक है, सो दिस इज दिस। सो दिस फॉर हिस्ट्री। सो दिस इज अ गुड नंबर ऑफ डेज दैट शुड बी रिक्वायर्ड, दैट शुड बी गुड इनफ। इसमें आपको इंपॉर्टेंट चीज यही है कि जो आप डे 1 को पढ़ रहे हैं, रिवीजन जरूर करना है। डे 1 यू रीड, लेट्स से यू आर रीडिंग चैप्टर 1 to 3 ऑफ एंशिएंट। नाउ डे 2 you first revise those chapter 1 to 3 half an hour 45 minutes में, and the remaining 3 hours or 3.5 hours that you have, you read chapter 4, 5, 6. Then on day 3 you revise chapter 4, 5, 6, not chapter 1 to 6, just whatever you have done in the previous day. So you read, you revise chapter 4, 5, 6, and then you go on to chapter 7, 8, 9, so on and so forth. So ये हर चीज में आपको अप्लाई करना है, चाहे आप हिस्ट्री पढ़ें, चाहे आप करंट अफेयर्स पढ़ें, पॉलिटी पढ़ें, इकोनॉमिक्स पढ़ें, ये आपको हर चीज में अप्लाई करना है, नो मैटर व्हाट। ठीक है, अगर हम ऐड कर सकते हैं तो एक डे 7 का रिवीजन और ऐड करें। दिस विल हैपन नॉट वेरी इजीली, बट इसका एक इजियर तरीका ये है कि आप 7 days का साइकिल बना लें। मंडे टू सैटरडे पढ़ाई करें ऐसे, आज पढ़ा कल भी रिवाइज किया, आज पढ़ा कल भी रिवाइज किया, एंड संडे कीप ओनली फॉर रिवीजन। जो मैंने 6 दिन पढ़ा है मैं उसको रिवाइज करूंगी या रिवाइज करूंगा ऑन संडे कंप्लीटली। संडे में नया नहीं पढ़ूंगी कुछ भी। ठीक है, दैट्स हाउ यू कैन डू द 7th डे रिवीजन। सो दिस इज गोइंग टू हेल्प अ लॉट। जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे, पीपल रिमेंबर रिवीजन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप दैट यू टेंड टू मिस। अक्सर हम रिवीजन शाम को करते हैं, रिवीजन शाम को नहीं करना है। रिवीजन हैज टू हैपन इन द मॉर्निंग। रिवाइज फर्स्ट एंड देन रीड न्यू। याद रखो इस बात को, रिवाइज फर्स्ट एंड देन रीड न्यू। शाम तक थक चुके होते हैं, वी डोंट फील लाइक रिवाइजिंग एनीथिंग, कि यार बहुत थक लिया, कल ही पढ़े थे, छोड़ देते हैं, याद ही होगा अभी तो। एक तो ये, दूसरा ये भी होता है कि जो टॉपिक चल रहा है उसमें या तो इंटरेस्ट आता है या लगता है इसको खत्म ही करके उठेंगे,
तब तक रिवीजन का टाइम निकल चुका होता है. सो दिस वे रिवीजन टेक्स अ हिट एंड इट इज वेल नोन, जो भी रिवाइज नहीं करता है बहुत कम चांसेस होते हैं उसका क्लियर करने का. ठीक है, बहुत ही कम चांसेस होते हैं क्योंकि वो याद नहीं होता. हर चीज पढ़ी हुई लगती है बट एग्जाम में राइट आंसर नहीं मिलता है आपको. एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड इन द टेस्ट ऑल्सो. ऐसा नहीं है कि एग्जाम का तो वेट करना पड़ेगा, टेस्ट में भी रिफ्लेक्ट करेगा. विल कम टू द टेस्ट सीरीज ऑल्सो. सो दिस इज फॉर द हिस्ट्री पार्ट. आई होप दिस इज क्लियर. आई एम गेटिंग ऑन द साइड, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. ओके, now next come polity and economics. So जो हमारे 3 स्लॉट हैं उसमें एक स्लॉट तो भर गया और वो पूरे महीने के लिए भर गया. So we don't have anything else to do in that slot. ठीक है. Then comes the second slot and comes the second subject. We take Indian polity. एक प्यारी सी स्टैंडर्ड बुक है, इसी को पढ़ना है और साथ में एक 11th क्लास की एनसीईआरटी है, पॉलिटिकल थ्योरी. छोटी सी बुक है, इसको पढ़ लीजिए. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क नहीं है ये, दिस इज पॉलिटिकल थ्योरी. दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर दोज 1 or 2 क्वेश्चंस जो स्टेट की डेफिनेशन, लिबर्टी की डेफिनेशन वगैरह टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है. So we can easily spend, now this second slot we have the entire month, we can divide it into these 2 subjects. 15-16 दिन आप आराम से पॉलिटी को दे सकते हैं, 30 डेज वाले भी और 37 डेज वाले ज्यादा दे सकते हैं. 37 डेज वाले 18-19 दिन दे सकते हैं. अगेन बिगनर एंड प्रो, राइट. आराम से 80-90 डेज में तो हम कर ही लेंगे. इट्स अ वेरी लिबरल, वेरी कंफर्टेबल टारगेट. मैं कोई ओवर एम्बिशियस या अनरियलिस्टिक टारगेट नहीं बता रहा हूं आपको. These targets are such कि इसमें आप क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेंगे. क्वेश्चन प्रैक्टिस की अभी बात करूंगा नेक्स्ट, राइट. एंड देन द सेकंड थिंग दैट वी हैव टू डू इज इंडियन इकोनॉमी. इंडियन इकोनॉमी के लिए अनफॉर्चुनेटली कोई बुक नहीं है. या तो आप अपने नोट्स जहां से आपने पढ़ा है वो देख लीजिए, नहीं तो श्रीराम आईएएस का जो प्रिंटेड मटेरियल है, श्री राम, वही comes to the rescue because that is one book that covers everything which is related to prelims economics. Mains का कुछ नहीं है उसमें, so वो वहाँ पे थोड़ा सा shortfall हो जाएगा. ठीक है. I am also in the process of writing a book which will be a very pinpointed book जो prelims और mains को पूरा properly cover करेगी. One part will be prelims, one part will be mains. उसके अलावा आपको ऐसा कुछ करना नहीं पड़ेगा, but unfortunately वो इस साल वालों के लिए नहीं रेडी हो पाएगी. ठीक है. Then there is a possibility of getting into a crash course. I am going to run a crash course also in the month of April, April 10th के बाद approximately. वो 10 दिन में prelims का, 10 से 12 दिन में prelims का पूरा कोर्स इस तरह कवर करेंगे कि आपकी इकोनॉमिक्स की अंडरस्टैंडिंग ठीक हो जाए. इकोनॉमिक्स इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. 20 to 25 क्वेश्चंस कम फ्रॉम इकोनॉमिक्स एंड दे आर सच. वो पॉलिटी की तरह है. अगर लक्ष्मीकांत आपने अच्छे से रटी है तो लक्ष्मी पॉलिटी के भी एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होते आपके. इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो सच. अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिए, ठीक है, देन देयर इज नो रीजन दैट यू विल गेट एनी क्वेश्चन रॉन्ग. एक आध क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स रिलेटेड है वो गलत हो सकता है, बट बाकी तो कुछ गलत नहीं होगा. सो दीज 2 सब्जेक्ट्स पुट टुगेदर हैव अ पोटेंशियल टू गेट यू टू 75% ऑफ द टोटल मार्क्स दैट यू रिक्वायर. ठीक है, दैट्स द आइडिया. तो इंडियन इकोनॉमी भी आप अप्रोक्सीमेटली 15-16 डेज, जो बिगनर्स हैं, जो प्रो है सॉरी, अगर यहां 15 दिए तो यहां 15, जो भी 1-2 दिन ऊपर नीचे कर सकते हैं. एंड फॉर बिगनर्स अगेन यू विल हैव अ गुड 18-90 डेज, 19 डेज एट हैंड. तो एक के बाद एक हिस्ट्री चल रही है एक स्लॉट में, दूसरे स्लॉट में पॉलिटी चला लीजिए पहले या इकोनॉमिक्स चला लीजिए पहले, वॉट एवर इज योर कंफर्ट एरिया. एंड सेकंड स्लॉट में आप दूसरा सब्जेक्ट चला लीजिए. सो नाउ बोथ योर स्लॉट्स आर बुक्ड टिल दिस फर्स्ट डेडलाइन दैट वी हैव. ठीक है. सो यू विल सी दैट बहुत कंफर्टेबली, बहुत लिबरल टारगेट्स के साथ हम आराम से ये तीनों सब्जेक्ट कवर कर सकते हैं. पूरा 1 महीना हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और पूरे 2-2 हफ्ते हम ये सब्जेक्ट्स को दे रहे हैं, राइट. और जो बिगनर्स हैं उनके लिए तो हम और ज्यादा टाइम दे रहे हैं. सो दिस इज अ वेरी लिबरल टारगेट. नाउ द थर्ड स्लॉट इज फॉर करंट अफेयर्स. तो ये हम बात कर ही चुके हैं ऑलरेडी. करंट अफेयर्स, जस्ट स्पेंड 3 to 4 hours every day, read 20 pages of the magazine. 100 pages की मैगजीन अगर है तो आपकी डिवाइड कर लो. बेसिकली 110 पेजेस हैं तो उस तरह डिवाइड कर लो 5 दिन में. 100 पेजेस हैं तो उस तरह डिवाइड कर लो. 40-50 पेजेस हैं तो उस तरह डिवाइड कर लो.
ठीक है. सो दैट्स हाउ यू हैव टू डू. तो spend 3 to 4 hours, just read 20 pages a day and you will be able to finish one magazine every 5 days approximately. कोई 4 दिन में कर लेगा, कोई 5 में करेगा, 3 में मत करिए, 3 is too quick, वो रिटेन नहीं कर पाएंगे आप. That's the idea. Now coming to practicing questions along with all this. Again I'm on the side, you can click a screenshot if you want and then we'll proceed. Okay. या पहले मैं सेकंड टारगेट बता देता हूं, फिर वील टॉक अबाउट प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू कवर थिंग्स इन आवर फर्स्ट टारगेट. ठीक है. तो फर्स्ट टारगेट के यहां पे मैं लिख रहा हूं एक बार फिर से, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स हो गया हमारा, प्लस 6 to 8 months ऑफ करंट अफेयर्स हो गया हमारा. डोंट थिंक आप देखोगे आप कि सिग्निफिकेंटली सब कुछ आपका कवर हो चुका है, बिकॉज जो एनवायरमेंट ऑफ साइंस एंड टेक है, that is approximately 60-70% done when you are doing this current affairs also. So not much time is required to be spent there. Now our second deadline was April 15th for pros and April 25th for beginners. इसमें अब हमें क्या क्या करना है? इसमें हमें ज्योग्राफी करना है, इसमें हमें एनवायरमेंट करना है, इसमें हमें साइंस एंड टेक करना है. और करंट अफेयर्स यहां पे दोबारा लिख देता हूं मैं, जनवरी 22 है ऊपर वाले का फर्स्ट का टारगेट, एंड देन जून या अगस्त अकॉर्डिंग टू योर स्टैंडिंग टिल दिसंबर 21 आप ये करेंगे. ठीक है. यहां पे जो करंट अफेयर्स करने हैं, वील हैव अराउंड गुड 20 days एट हैंड. तो एक तो हम फेब 22 का करेंगे क्योंकि मार्च की मैगजीन आई नहीं होगी तब तक आप लोगों के लिए. ठीक है. एंड जो रिमेनिंग है अप्रैल, मई और जिसका जून रह जाएगा वो जून 21. सो दिस वी आर गोइंग टू कवर. सो अप्रैल से मई तक हम 13-14 मंथ्स के करंट अफेयर्स कवर कर लेंगे टिल द टाइम एग्जाम कम्स, एंड दिस इज व्हाट वी नीड टू डू. ठीक है. जिसने थोड़े से करंट अफेयर्स कवर कर लिए हैं ऑलरेडी, दे कैन गो फर्दर बैक ऑल द वे टू जनवरी. दिस विल हेल्प देम कवर अराउंड 17-18 months ऑफ करंट अफेयर्स. बट जनवरी के पीछे जाने की जरूरत नहीं है. बट गो बैकवर्ड्स, द जैन टू मार्च स्लॉट इज गोइंग टू बी योर लास्ट प्रायोरिटी. अगर बाकी सब चीजें ट्रैक पे हैं तब उसको करिए, अदरवाइज मत करिए. ठीक है. सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू. नाउ कमिंग टू द सोर्सेस फॉर ज्योग्राफी एंड टाइम. यहां पे भी आप देखो, बिगनर्स के प्रो के लिए 15 दिन है, बिगनर्स के लिए भी अप्रोक्सीमेटली 19 दिन है, 18 दिन है ना. सो दैट्स द आइडिया. सो ज्योग्राफी के लिए अगेन सेम 3 स्लॉट चल रहे हैं हमारे. ये वाला करंट अफेयर्स का स्लॉट चलता रहेगा एज इट इज. एक स्लॉट में ज्योग्राफी डाल दीजिए. सो पीपल कैन स्पेंड 10 to 15 days ऑन दिस. अगर आप बिगनर हैं या प्रो हैं, पढ़ना क्या है, 6th या 7th से 12th तक की एनसीईआरटी. कुछ लोगों ने 11th-12th की ऑलरेडी पढ़ ली है. जो पहली बार ज्योग्राफी कर रहे हैं, आई वुड सजेस्ट कि आप 6-7 से स्टार्ट करें. 6, 7, 8, 9, 10th की एनसीईआरटी एक दिन में हो जाती है. बिकॉज 6-7 वालों को क्या ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, अर्थ इज राउंड, दिस एंड दैट, ब्ला ब्ला ब्ला. इसके नोट्स आप नहीं बनाएंगे ऑब्वियसली. नोट्स आप उस चीज की बनाएंगे जो आपको नहीं पता होगा उसमें, है ना. सो 10 to 15 days आराम से स्पेंड करिए. 6 to 12 की एनसीईआरटी प्लस जीसी लेओंग कर लीजिए, आराम से हो जाएगी. 6 to 10th की एनसीईआरटी एक दिन में, 11-12th की एनसीईआरटी प्रॉब्ली 6-7 days में, और 2-3 दिन में जीसी लेओंग का जो पार्ट 2 है विद इन द बुक स्टार्टिंग फ्रॉम चैप्टर 12, एटलीस्ट वो वाला पार्ट कर लीजिए. उसमें 2 दिन लगते हैं करने में, उससे ज्यादा लगता नहीं है टाइम, वंस यू आर डन विद द एनसीईआरटीज एंड ऑल. कमिंग टू एनवायरमेंट, सम पीपल रीड शंकर आयस का बुक. वंस अगेन वो पूरी बुक पढ़ने का कोई पर्पस नहीं है, कोई जरूरत नहीं है एज सच. अगर आप पढ़ चुके हैं, कंफर्टेबल हैं तो पढ़ लीजिए, नोबडी स्टॉपिंग यू. बट अगर आप पहली बार स्टार्ट करने जा रहे हैं तो मत पढ़िए उसको अब. ठीक है, जरूरत नहीं है. इसमें बायो की एनसीईआरटी है क्लास 12th की, जिसमें चैप्टर 13 to 16 पढ़ना है. फिर एक केमिस्ट्री की एनसीईआरटी है 11th की, वॉल्यूम 2 है ये, जिसमें चैप्टर 14 है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पे, एक ये पढ़ना है. और शंकर आयस से कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स कर लीजिए. चैप्टर ये 6th एडिशन के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं. दिस लिस्ट इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो. चैप्टर 15-16 एंड देन चैप्टर 22nd से 27th तक
ये वो चैप्टर्स हैं जिसमें इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स हैं, एक्ट्स हैं, पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की एंड ऑल दैट। और ये इस बुक से इसलिए रिकमेंड कर रहा हूं बिकॉज एक जगह सब कुछ है। इफ यू हैव अनदर सोर्स वेयर इन यू हैव ऑल दिस कंसोलिडेटेड, तो बहुत आराम से उसको पढ़ लीजिए, इस बुक को पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। अपार्ट फ्रॉम दिस whatever is asked in environment it is primarily current affairs, so इससे ज्यादा करने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, आपको घबराने की भी जरूरत नहीं है। ऑल दिस कैन easily be done in 7 days। 4-5 चैप्टर ये हैं, एक चैप्टर ये है और 5-7 चैप्टर ये है, तो आप इसको 7 to 8 days दे सकते हैं आराम से। देन लास्ट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो नहीं पढ़नी है। जो इंजीनियर है वो बायो उसके बस की नहीं है, छोड़ देना। मैं भी इंजीनियर हूं, मेरे बस की भी नहीं थी कभी। हम पढ़ लेते हैं, हमें लगता है आ गई, बट होती नहीं है, वहां जाके कंफ्यूजन हो ही जाता है। और जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के हैं उनसे फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं होगी, फायदा नहीं है कुछ करने का, ठीक है। लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। सो साइंस एंड टेक में प्राइमरली करंट अफेयर्स पढ़िए और लेगेसी इंफॉर्मेशन थोड़ी सी पढ़ लीजिए इंडिया से रिलेटेड, स्पेस डेवलपमेंट, न्यूक्लियर साइंस डेवलपमेंट, सुपर कंप्यूटर डेवलपमेंट, बायोटेक, नैनोटेक डेवलपमेंट, सो ऑन एंड सो फोर्थ टिल नाउ। तो इन लेगेसी डेवलपमेंट्स के लिए यू कैन स्पेंड अप्रोक्सीमेटली अ वीक अगेन, ठीक है, 1 slot। सो डू दैट। उसके अलावा करंट अफेयर्स जो आपके चल रहे हैं, यू आर वेरी वेल प्लेस्ड व्हेन इट कम्स टू एनवायरमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी अदरवाइज, राइट। सो दैट्स अबाउट इट। ये हमारा हो गया पूरा। वी हैव कवर्ड एवरी सिंगल एरिया दैट नीड्स टू बी डन। वी हैव नॉट स्किप्ड ऑन एनीथिंग। कोई भी शॉर्टकट नहीं ले रहे हैं, क्योंकि शॉर्टकट से कभी कोई आईएएस वैसे भी नहीं बना है, राइट। देयर इज नो शॉर्टकट इन दिस प्लान। और बहुत कंफर्टेबली, बहुत लिबरल टाइमलाइन के हिसाब से आप देखेंगे, बट बहुत ज्यादा डिसिप्लिन की जरूरत है ओवर दीज नेक्स्ट 40-45 डेज। आप इसको ढंग से कर लीजिए, आप बहुत कंफर्टेबली प्रीलिम्स क्लियर करेंगे, गारंटी है इस बात की। बट बी ऑनेस्ट विद योर एफर्ट। बुक जब आप पढ़ रहे हैं इतनी रट लीजिए, डेली रिवीजन, नेक्स्ट डे रिवीजन, वीकली रिवीजन, राइट। और फिर उसके बाद हम जो लास्ट 50 डेज 40 डेज बचे हैं हमारे प्रो और बिगनर के हिसाब से, वहां पे भी 1 से 2 रिवीजन हम एडिशनली कर सकते हैं। सो दिस इज दैट 4 और 5 रिवीजन दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट इन द बिगनिंग, ठीक है। सो अगर आप इस तरह करते हैं, द बुक और योर नोट्स शुड बिकम योर पिक्टोग्राफिक मेमोरी इन सच अ वे कि आपको याद रहे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए कि यार अच्छा ये लेफ्ट पेज में कहीं नीचे की तरफ लिखा है या राइट पेज में कहीं ऊपर की तरफ लिखा है। अक्सर अपने नोट्स के साथ तो हो ही जाता है कि हेडर में मैंने कहीं साइड में स्क्रिबल किया था या फुटर में मैंने कहीं स्क्रिबल किया था, आई रिमेंबर, राइट। बुक अगर आप रेफरेंस बना रहे हैं तो बुक के साथ ऐसा करिए। अ लॉट ऑफ यू वुड थिंक कि सर नोट्स बनाए या नहीं बनाए। जो नोट्स बना के कंफर्टेबल है वो नोट्स बना ले। नोट्स बनाने का टाइम ऑनेस्टली अभी है नहीं, नोट्स बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा। सो यू जस्ट मार्क द बुक एंड कीप रीडिंग एंड रीडिंग द बुक इटसेल्फ। लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम अपने आप में नोट्स हैं, उसके नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। एंशिएंट मेडिवल बुक को 2-3 बार पढ़ लेंगे, नोट्स बनाने से बेटर हो जाएगा। ऑब्वियसली नोट्स बनाने से आप ज्यादा याद रख सकते हैं, बट नाउ इज नॉट दैट टाइम। वो टाइम तब होता है जब आप जून में हैं और अगले साल की तैयारी कर रहे हैं। अब नोट्स नहीं बनाएंगे आप एंशिएंट मेडिवल के, अगर आपने नहीं बनाए हैं पहले, राइट। जो फिर भी हेलमेट है कि नहीं मैं एक्स्ट्रा टाइम स्ट्रेच करके बना लूंगा, तो बहुत अच्छी बात है, बना लो, ज्यादा ही याद होता है, कम नहीं होता। बट बुक को रटिए। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ माइन हैव क्लियर्ड प्रीलिम्स आराम से बुक रट के भी, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। करंट अफेयर्स मैगजीन के भी नोट्स मत बनाइए, उसी में मार्क करिए, उसी को रिवाइज करिए। आप इन दी एंड अगर इतना आप में पोटेंशियल है कि मैं पूरे महीने के प्रीलिम्स टिडबिट्स का एक A4 शीट बना सकता हूं या सकती हूं फ्रंट एंड बैक मिला के, वो कर लीजिए, रिवीजन में आसानी हो जाएगी। अदरवाइज उसी में से याद करिए। और याद करने का सिंपल तरीका है, जो भी आप पढ़ रहे हैं 5-10 मिनट के लिए पढ़िए, फिर आंखें बंद करिए और रिकॉल करिए क्या पढ़ा है आपने। तब आपको समझ में आएगा कि आपने एक्चुअली ध्यान लगा के पढ़ा है। अगर आप 10 मिनट बाद भी रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, तो रीड दैट अगेन। दैट इज हाउ यू हैव टू स्टडी, ठीक है। पिक्टोग्राफिक मेमोरी बनानी है आपको रट के। अब वो यूपीएससी नहीं रह गया जिसमें बिना रटे और समझ के काम हो जाता था, अब रटना ही पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली पिछले 2-3 साल से ऐसा हो रहा है, राइट। सो दिस इज ऑल द सब्जेक्ट्स, दिस इज ऑल द करंट अफेयर्स। अब इसमें ऐड करते हैं प्रैक्टिस, इसमें ऐड करते हैं टेस्ट सीरीज और इसमें ऐड करते हैं CSAT, ठीक है। लास्ट बिट है ये। आई एम सॉरी, आई होप आपने स्क्रीनशॉट लिया हो, ले लीजिए एक बार। ये मैंने इरेज कर दिया, April 15 है यहाँ पे। Now, practice questions. Importance of practice questions. कहां से लें और कैसे करें? देखो, 2 बातें हैं।
एक होता है क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, वन थिंग इज टू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस and another thing is to practicing how to approach the paper on the exam day. When we are talking about practicing the question, you are practicing how to approach the question. You read the question, you try to see if there is any hint in any option given जो मैं जिससे मैं कुछ एलिमिनेट करके कोशिश करके याद करके एलिमिनेट कर पाऊं. नॉट दैट हिंट की ऑल लिखा है या नन लिखा है या मस्ट लिखा है, ऑल दिस काइंड ऑफ नॉनसेंस ये नहीं चलती है. बहुत सारे लोग बहुत सारे वीडियो बना के डाल चुके हैं ट्रिक्स के नाम से. अंडरस्टैंड रेट्रोस्पेक्टिव मैनर में ट्रिक्स बन जाती हैं कि अच्छा पिछले देखो 3 साल के पेपर ये सॉल्व हो रहे हैं इस ट्रिक से. बट 2021 में इन 2021 a lot of people fell for these tricks and they fell out of the exam cycle for this year. अब वो नेक्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हैं. सो प्लीज डोंट गो बाय द ट्रिक्स. आप अगर मेरी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं उसमें ये सारी ट्रिक्स हटा देंगे हम आपकी दिमाग से, सो दैट यू आर एक्चुअली रेडी कि कुछ भी आ जाए बिना ट्रिक के मैं कर लूंगा. व्हेन आई से हिंट, looking for the hints in the options, I am talking about your knowledge base और उसके बेसिस पे हिंट कि अच्छा यार ये तो गलत लग रहा है, ये नहीं हो सकता. मे बी आपने टॉपिक नहीं पढ़ा है बट आपको पता है कि जो उसमें वन ऑफ द ऑप्शंस है वो स्टोरी आपको पता है वो कुछ और है. दैट इज द हिंट दैट वी आर लुकिंग एट, राइट. उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, नॉट द स्टूपिड ट्रिक्स दैट पीपल आर टॉकिंग अबाउट. सो क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करें? 2 टेस्ट सीरीज ले लीजिए दोस्तों. मार्केट से एक टेस्ट सीरीज मार्केट से उठा लीजिए और एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए. ठीक है, मेरी भी एक टेस्ट सीरीज है ऑब्वियसली, एंड वी हैव इंश्योर्ड close to we have taken in close to 220 students in the past 2 years, and out of that 110 students have written mains in the past 2 years. और उसमें से सेलेक्ट भी हुए हैं फाइनली लोग. But the key is that 1 out of every 2 students who have joined our test series has been able to clear prelims, and these are those students जिन्होंने पहले कभी prelims clear नहीं किया है. We specifically take students who have been struggling with prelims, जिन्होंने prelims clear नहीं किया है, because ours is a detailed diagnostic test series, one of a kind, जिसमें हम एक एक पिन पॉइंट करते हैं एरिया जो आपका वीक है. मॉडर्न हिस्ट्री में अगर आपका सोशल रिफॉर्म वीक है, पेजेंट और ट्राइबल मूवमेंट वीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वीक है, वी आर गोइंग टू पिन पॉइंट. वी विल नॉट से कि यार आपका मॉडर्न का परफॉर्मेंस खराब है. वी विल टेल यू विद इन मॉडर्न क्या प्रॉब्लम है, वी विल टेल यू विद इन पॉलिटी क्या प्रॉब्लम है, विद इन इकोनॉमिक्स इज इन्फ्लेशन वीक और एक्सटर्नल सेक्टर वीक, सो ऑन एंड सो फोर्थ. In the current affairs test that are also there on that, you will also see that we are going to pinpoint to a level कि आपका इस month का current affairs week है, please go and revise this particular month, and then within all that कौन सा subject area ज़्यादा weak है उसको revise करिए. And then we take this same test in level 2 again. तो हम देखते हैं जो पहले टेस्ट में प्रॉब्लम्स आई थी क्या आपने वो फिक्स कर ली हैं. वी आर ऑल्सो गोइंग टू टेल यू हाउ टू फिक्स दोस प्रॉब्लम्स अगर आपसे नहीं हो पा रही है. दैट इज द इंटेंट. इट इज अ 1-to-1 मेंटर गाइडेड टेस्ट सीरीज, राइट. प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज फर्स्ट ऑफ अ काइंड, वन ऑफ अ काइंड. कोई भी ऐसा मेंटर गाइडेड टेस्ट सीरीज नहीं है जो आपको एक्चुअली हेल्प करता है आपके शॉर्ट कमिंग्स को ढूंढने में और उसको फिक्स करने में. यू कैन फाइंड द डिटेल्स ऑफ द टेस्ट सीरीज ऑन द वेबसाइट smartworklabs.in. इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में भी है, एंड यू प्रॉब्ली कैन सी द लिंक और द वेबसाइट ऑन द स्क्रीन राइट नाउ. ठीक है, सो दिस नाउ, सो एक टेस्ट सीरीज आप टेस्ट की तरह करेंगे और एक टेस्ट सीरीज आप यूज करेंगे एज क्वेश्चन बैंक. नाउ व्हेन आई से क्वेश्चन बैंक, आई डोंट मीन कि आप टेस्ट पूरा लेके बैठे. हिस्ट्री आपने मान लीजिए एंशिएंट मिडिवल कर ली है, यू डोंट सिट विद द एंटायर टेस्ट एंड सिट फॉर 2 hours एंड टेक द टेस्ट. नो, you do 20-25 questions and spend approximately an hour on that. 25-30 questions कर लीजिए. So the idea is that you spend time on a question. आपने आज कुछ पढ़ा, फॉर एग्जाम्पल आपने आज फंडामेंटल राइट डीपीएसपी पढ़े. डोंट प्रैक्टिस द क्वेश्चंस टुडे. आज पढ़ के कल प्रैक्टिस करिए, बिकॉज हमें देखना है याद कितना है, समझ कितनी है. आज करेंगे तो हो ही जाएगा. So practice the questions next day. All these 25-30 questions. Spend an hour so that you spend time on each and every question. और जो क्वेश्चन गलत हो रहा है, पॉलिटी का टेस्ट उठाइए, जो भी आप टेस्ट सीरीज ले रहे हैं उसमें सेलेक्टिवली क्वेश्चन देखिए कि अच्छा ये वाला नहीं है फंडामेंटल राइट्स का, छोड़ देता हूं, ये है, ये कर लेता हूं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. और अगर वो गलत हो रहा है, द इंपॉर्टेंट थिंग स्टार्ट्स देयर. यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज योर थॉट प्रोसेस जो गलत आंसर आया. Then you check the solution, you go back to your book, whatever you want to do, then understand what should have been the right thought process and why is there a gap between the two thought processes despite you having read it yesterday. अभी पढ़ा है, फिर क्यों नहीं हो पा रहा है मेरे से? क्या कमी रह गई? क्या मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया, मुझे टॉपिक ही समझ नहीं आया, मुझे याद नहीं है? What is the problem? Find that problem, fix that problem.
then move on to the next question. This is what is meant by practice. You understand how to approach the question, you understand how to interpret the question. अक्सर ऐसा हो जाता है, अरे यार ये तो ऐसे भी सोच सकते थे, ये तो सोचा ही नहीं हमने. So a lot of times while reading you don't get it, but while approaching a question you understand that. ठीक है. So how to approach a question? अगर कोई question eliminate हो जाता है पहली बार देख के, a lot of test series में आपको hint मिलने लगता है कि अच्छा यार इसका तो all of the above ही होगा, इसका none of the above ही होगा. अगर वो हो रहा है, आपके नंबर आ रहे हैं, don't be complacent. Think कि अगर ये all of the above मैं नहीं कंसिडर करता हूं, क्या मुझे ये तीनों ऑप्शन पता थे? अगर नहीं पता थे तो क्यों नहीं पता थे? As long as वो बुक में है या as long as वो करंट अफेयर्स में है तो पता होने चाहिए. बट इफ इट इज एन ऑब्सक्योर फैक्ट, क्योंकि बहुत सारी टेस्ट सीरीज नए क्वेश्चन, डिफरेंट क्वेश्चन बनाने के लिए इधर उधर से इंटरनेट से सर्च करने लगते हैं, तो वो चीज आपको याद करने की जरूरत नहीं है, उसको आप इग्नोर कर दीजिए. बट अगर वो बुक में था, अगर आपने बुक ढंग से पढ़ी है, आपको याद आया था कि यार ये कहीं तो पढ़ा है, या वो करंट अफेयर्स में रहा है, उसको चेक करने के लिए सिंपल है, जो भी कीवर्ड है क्वेश्चन में उठाइए, गूगल करिए, साथ में द हिंदू लिख के या इंडियन एक्सप्रेस लिख के. अगर कोई आर्टिकल आ रहा है पिछले 1.5 ईयर्स में, तो आप उसको याद कर लीजिए अगर अब तक नहीं पता है. अगर नहीं आ रहा है तो एक्सक्यूज मी, आप उसको इग्नोर कर सकते हैं कंप्लीटली. ठीक है. अदरवाइज डोंट स्टार्ट एडिंग इनटू योर नोट्स जनरली कि यार जो भी ऑब्सक्योर चीजें ऐड कर लूं, देयर विल बी नो एंड टू दैट. सो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रैक्टिस. सो यू प्रैक्टिस अराउंड 30 क्वेश्चंस इन 1 आवर. हर सब्जेक्ट का 300 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का टारगेट रखेंगे. सो दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली 10 आवर्स, और हम 11-12 घंटे पढ़ रहे हैं, तो मोर और लेस दिस इज 1 डे. तो हर सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आपको सिर्फ एक दिन इफेक्टिवली स्पेंड करना है. ऑब्वियसली एक दिन में सारे नहीं कर रहे हैं हम स्प्रेड आउट कर रहे हैं ओवर द पीरियड. तो अगर आप देखें इफेक्टिवली 1 एक्स्ट्रा डे लगा के हम 300 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं. एंड द वे आई हैव सजेस्टेड, यू विल सी एन ओशन ऑफ डिफरेंस इन योर प्रिपरेशन लेवल. ओशन ऑफ डिफरेंस मतलब इतना लेवल चेंज हो जाएगा आपका, आप किसी भी क्वेश्चन को अप्रोच करने में डरेंगे नहीं, एटलीस्ट हर क्वेश्चन को अप्रोच करना चाहेंगे. दैट्स द आइडिया. सो वी डू दिस फॉर एवरी सब्जेक्ट. वी स्पेंड अराउंड 10 आवर्स ऑफ प्रैक्टिसिंग. And once we have done this, we read, we revise, we practice, only then we take a test. So अगर आप पहली बार में ही टेस्ट डायरेक्टली टेस्ट लिखते हैं तो यहाँ प्रॉब्लम क्या आएगी? फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो सरप्राइज तब मिलेगा दैट ओके ये चीज़ें तो याद ही नहीं है, राइट? एंड वील डू बेसिक मिस्टेक्स. वो बेसिक मिस्टेक्स हमें नहीं करनी है. अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज देखते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट है, सो वी वांट अ डायग्नोसिस जो आप अपने लेवल पे ना कर पाए, तब तो बात है, राइट? सो ये बेसिक प्रॉब्लम्स आप जो प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस दैट यू आर नॉट एबल टू रिटेन थिंग्स, या यू नो कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट बेसिक ही क्लियर नहीं है नाउ, उसके बाद यू हैव रीच्ड अ पर्टिकुलर लेवल, उसके बाद जो प्रॉब्लम्स रह गई जो आप अपने लेवल पे रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, विच इज प्रोबेबली स्टॉपिंग यू फ्रॉम क्लियरिंग द प्रीलिम्स, वो हम बताएंगे. हम सिर्फ प्रॉब्लम ही नहीं बताएंगे, हम सोल्यूशन भी बताएंगे उसका, राइट? सोल्यूशन हम साथ में ही उसको ट्राई करेंगे प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का. एंड देन इन द सेकंड राउंड ऑफ टेस्ट वी विल चेक अगर आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है या नहीं. अगर वो नहीं किया है फिर से देखेंगे क्या प्रॉब्लम है, और एक राउंड ऑफ टेस्ट फिर से कोशिश करेंगे इन अ शॉर्टर स्पैन ऑफ टाइम. ठीक है, दैट्स द आइडिया. सो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रोसीड. सिंपल सी चीज है, 3-4 स्टेप है. एज आई से अगर आप उसको कर लेते हैं तो क्लियर होगा. रीड, रिवाइज, then practice, and then take the test, and with every test you improve. And please do not wait, as I said, please do not wait to start the test once you are done with everything. वो दिन कभी नहीं आएगा पहली बात तो. And if that day comes also and you start taking the test later, then there will be very less time left to fix the problem if the problem comes up during the test. ठीक है? So that's about the GS part. अब एक CSAT जो हमें ऐड करना है. CSAT में सिंपल जो मैथ्स हैज बिकम मोर इम्पॉर्टेंट. देयर वर ओनली 26 इंग्लिश के क्वेश्चंस, द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस जो आए हैं इस बार, राइट? उसके अलावा 44 या 47 क्वेश्चंस व्हाटएवर देयर वर, वो आपके मैथ्स और रीजनिंग के थे. तो अब इंपॉर्टेंट हो जाता है CSAT को प्रैक्टिस करना. अ लॉट ऑफ माय स्टूडेंट्स आल्सो, बिकॉज लास्ट ईयर वी टुक देम ऑन देयर वर्ड कि CSAT तो ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है. वी डू नॉट वांट टू टेक दैट चांस, इसलिए हमारी टेस्ट सीरीज में CSAT भी है. तो CSAT जिसकी प्रॉब्लम है, जिसको ज्यादा प्रॉब्लम है, वो हफ्ते में 3 बार एटलीस्ट 2 घंटे 3 घंटा CSAT करे. एंड पीपल हु आर स्लाइटली कंफर्टेबल विद इट, 2 times a week वुड बी गुड इनफ, राइट? तो पहले तो एक टेस्ट कर लीजिए, कोई भी सैंपल टेस्ट मार्केट से उठाइए या प्रीवियस ईयर पेपर ही पिक करिए एंड टेक अ टेस्ट and create a baseline. Let's see कहां पे आप खड़े. If you are able to score 100 marks, हमें 100 marks चाहिए CSAT में, ठीक है? CSAT का टारगेट हमारा 100 marks का है. We do not want to score 75 marks. I know 66.6 marks चाहिए,
बट 75 मार्क्स इज टू क्लोज टू दैट। और अगर 2 क्वेश्चन इंग्लिश के गलत हो जाते हैं गलती से, क्योंकि बहुत एम्बिग्यूटी रहती है उनके आंसर की में यूपीएससी की, तो आप ऑलरेडी गेम के बाहर होने के बहुत करीब हो जाते हैं। वी डू नॉट वांट टू टेक दैट अननेसेसरी रिस्क ओवर देयर। So 100 स्कोर करेंगे। फॉर दैट ऑल्सो अंडरस्टैंड वी डू नॉट हैव टू नो एवरीथिंग इन मैथ्स, एवरीथिंग इन रीजनिंग, सेलेक्टेड एरियाज करेंगे। एंड फॉर दिस इन अ कपल ऑफ डेज वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्री सीसैट क्लासेस। एज आई ऑलवेज से कि मैथ्स एंड रीजनिंग आपके लाइफ स्किल्स हैं, उसके लिए हम कभी चार्ज नहीं करेंगे। सीसैट क्लासेस एट स्मार्ट वर्क लैब्स विल ऑलवेज बी फ्री। ठीक है, सो सीसैट आप अगर 3 स्लॉट अपने पास हैं और हफ्ते में 3 दिन करना चाहते हैं, राइट, सो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे अगेन, तो एक दिन इस स्लॉट में करिए, फिर एक दिन छोड़ के इस स्लॉट में करिए, और फिर एक दिन छोड़ के इस स्लॉट में करिए। व्हाई? बिकॉज आई डू नॉट वांट कि आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को या करंट अफेयर्स को ही पूरा सैक्रिफाइस कर दें थ्रू आउट द वीक। वी डू नॉट वांट टू डू दैट। ठीक है, तो एक आप इस तरह करते हैं तो दिस सब्जेक्ट एटलीस्ट यू विल स्टडी फॉर 6 days in a week instead of 3. This subject also you will study 6 days in a week, and current affairs also you will study 6 days in a week. जो सिर्फ 2 स्लॉट्स में पढ़ना चाहते हैं, जो 2 हफ्ते में 2 सिटिंग लेना चाहते हैं, वो करंट अफेयर्स को टच नहीं करेंगे। करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, रेगुलर चलते रहना चाहिए विदाउट एनी सैक्रिफाइस ऑन दैट पार्ट। तो ये होता है आपका सीसैट का। सीसैट में भी जो भी एरियाज हम कर रहे हैं उसमें वील ट्राई टू प्रैक्टिस अराउंड 40-50 क्वेश्चंस, तभी आपको वो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अदरवाइज 10 क्वेश्चन के बाद लगने लगता है मैथ्स हो गई, बट मैथ्स ऐसे नहीं होती है। यू प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ओनली देन इट बिकम्स योर सेकंड नेचर, तब वो मैथ्स आपको ढंग से समझ में आएगी। एंड इन आवर क्लासेस व्हाट वी आर गोइंग टू फोकस, जो यूट्यूब पे लाइव होंगी फ्री, आप सेंटर पे आके भी अटेंड कर सकते हैं। द शेड्यूल ऑफ द सेम विल बी अवेलेबल ऑन अ चैनल, टेलीग्राम चैनल स्मार्ट वर्क लैब्स का, या आपका इट विल बी अवेलेबल ऑन यूट्यूब ऑल्सो, जब भी आपका इवेंट क्रिएट हो जाएगा, जब भी क्लास होगी, एंड इट विल बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट एज वेल, smartworklabs.in. तो हम लोग इन क्लासेस में हमारा फोकस यही रहेगा कि हम क्लास मैथ्स को मिनिमम फॉर्मूलाज के साथ करें, लॉजिक ज्यादा यूज करें, एंड बेसिक सेंस ज्यादा यूज करें। फॉर एग्जाम्पल कैलेंडर प्रॉब्लम हुई या स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस प्रॉब्लम हुई, तो कैलेंडर प्रॉब्लम में भी इफ यू सी मल्टीपल वीडियोस ऑन यूट्यूब, यू विल सी दे विल आस्क यू टू क्रैम अ लॉट ऑफ टेबल्स। कुछ टेबल्स याद कर लीजिए, नंबर्स याद कर लीजिए, वो कुछ नहीं करने की जरूरत पड़ेगी इफ यू अटेंड आवर क्लासेस। वो आराम से आइए, आपको सब बेसिक क्लैरिटी हो जाएगी, एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व दोस 2 क्वेश्चंस ऑफ कैलेंडर इन लेस देन 2 minutes। मतलब 1 minute पर क्वेश्चन में आप उसको सॉल्व कर पाएंगे और 5 नंबर आराम से स्कोर कर पाएंगे। दिस इज सीसैट। नाउ फॉर पीपल हु कीप आस्किंग कि सर अब मेंस का क्या करें, बिल्कुल छोड़ दें क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल यस, फॉर नाउ बिल्कुल छोड़ दीजिए। बिल्कुल मेंस नहीं पढ़ना है एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 40 days। सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स 11-12 घंटे एज आई सेड उसको फोकस करिए। नाउ अगर आपको मेंस का थोड़ा सा करना भी है, सो द सब्जेक्ट्स दैट वी आर डूइंग फॉर प्रीलिम्स, दोज आर सफिशिएंट इफ वी कवर दैट फॉर मेंस। फॉर एग्जांपल GS1 में अगर हम देखते हैं, वी हैव हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी एंड इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी के 6 क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी मिला के 14 क्वेश्चंस आते हैं। इट इज ओनली दिस ईयर इन आफ्टर अ फ्यू इयर्स की एक वर्ल्ड हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस से एक क्वेश्चन पूछा है। अदरवाइज देयर वर नो क्वेश्चन फ्रॉम दीज 2 एरियाज इन द पास्ट कपल ऑफ इयर्स एटलीस्ट, राइट? तो दिस इज 70% ऑफ GS1। और हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए हम जो सोर्सेज हमने डिस्कस किए हैं उसके अलावा हम कुछ भी नहीं लेते हैं एनीवे, right? So all the sources that you have done for history, for geography, NCERTs and all, those are sufficient. उतना ही करना है। You can always write a mains का test also. तो उससे एक confidence बढ़ेगा। For example, we have a prelims cum mains integrated test series, जो इसी तरह डिजाइन की गई है कि आप हिस्ट्री का पहले टेस्ट दें, लेवल 1 टेस्ट, फिर उसको रिवाइज करके दोबारा लेवल 2 टेस्ट दें। इन लेवल 2 टेस्ट तक आते आते हम अपने प्रीलिम्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर चुके होंगे, एक रिवीजन हो चुका होगा, एंड देन नेक्स्ट डे ऑफ द लेवल 2 टेस्ट यू कम फॉर 3 hours, यू राइट द हिस्ट्री मेंस का टेस्ट, फुल 20 क्वेश्चंस का टेस्ट होगा, सिर्फ हिस्ट्री होगी उसमें, एंड यू कैन जस्ट गो अवे। उसमें भी हम पर्सनल मेंटरशिप प्रोवाइड करेंगे, एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड आंसर राइटिंग के नुआंसेस क्या हैं अगर आप बिल्कुल बेसिक बिगनर हैं तो। सिमिलरली GS2 की अगर हम बात करते हैं, पॉलिटी अगेन हम लक्ष्मीकांत और NCERT के अलावा कुछ नहीं पढ़ते हैं मेंस के लिए सेपरेटली। करंट अफेयर्स ऐड करना है, वो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। दैट इज 10 क्वेश्चंस विच इज 50% ऑफ GS2। एंड इन GS3 इट्स ओनली 2 क्वेश्चंस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एंड 4 क्वेश्चंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। उसके अलावा जो 14 क्वेश्चंस हैं वो इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक और एनवायरमेंट से आते हैं।
और यही तीनों चीजें हमें प्रीलिम्स के लिए भी करनी है. सो सेम 3 थिंग्स इफ वी डू इट इन अ वे कि हम मेंस की भी हमारे साथ में तैयारी हो जाए. अगेन कोई अलग से स्पेशल सोर्स नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ करंट अफेयर्स ऐड करते हैं. एंड यू कैन कम एंड राइट दिस टेस्ट ऑल्सो एंड इट विल बी अगेन 70% ऑफ GS3. नाउ आफ्टर दिस इसके अलावा आपके पास बाकी टेस्ट भी है हमारी टेस्ट सीरीज में, जो इंडियन सोसाइटी, इंटरनल सिक्योरिटी, IR वगैरह को कवर करते हैं, बट वो शेड्यूल्ड नहीं करे गए हैं. क्यों? बिकॉज सम पीपल मस्ट हैव कवर्ड दीज एरियाज बिफोर नवंबर दिसंबर में, सम पीपल मे नॉट हैव. तो जिसने कर लिया है, once we are done with these 45 days, you can quickly take 2-3 days out, revise society and social justice, take that test. Similarly, you can revise ethics, you can take that test, so on and so forth. अगर नहीं किया है तो ये टेस्ट आप प्रीलिम्स के बाद कर सकते हैं. That's the idea over here. But आप अंडरस्टैंड बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस जो 102 डेज हैं उसमें ऑलरेडी बहुत सारी चीजें करनी है. वी हैव टू डू आवर ऑप्शनल, वी हैव टू डू एथिक्स, वी हैव टू डू एसे, ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज भी चलेगी. सो इट बिकम्स वेरी मेसी ओवर देयर. सो इफ वी डू एटलीस्ट दीज एरियाज which is not extra effort क्योंकि वो प्रीलिम्स के लिए पढ़ ही रहे हैं हम ऑलरेडी. If we do these areas, then we are also covering 70% and 50% of 3 papers already. ठीक है? तो एक तो बहुत कॉन्फिडेंट हो जाएंगे आप कि यार थोड़ी सी आंसर राइटिंग मैंने ऑलरेडी करी है, आई एम नॉट अ बिगनर, आई एम नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच आफ्टर प्रीलिम्स. और ऑलरेडी 3 से 4 टेस्ट लगते इन विच वी सेट योर स्ट्रक्चरिंग, योर आंसर राइटिंग स्किल्स एंड ऑल दैट. 4 टेस्ट के बाद आप इतने इक्विप हो जाते हैं कि आप अपने आप कर सकते हैं. ठीक है? दैट्स द होल आइडिया ऑफ आवर प्रोसेस. तो उसके बाद यू विल बी फेयरली कॉन्फिडेंट, यू विल नॉट बी स्केयर्ड ऑफ राइटिंग द टेस्ट आफ्टर प्रीलिम्स, यू विल नॉट बी स्केयर्ड ऑफ राइटिंग एनी आंसर आफ्टर प्रीलिम्स. आप कोई भी क्वेश्चन देखोगे तो आप अपने अंदर से आएगा कि यार एक बार ट्राई तो करके देखता हूं. ठीक है? दैट्स द आइडिया. ठीक है? सो दिस इज अबाउट इट फ्रॉम माई साइड. दिस इज ऑल द स्ट्रैटेजी दैट वी हैव टू डिस्कस. वी हैड टू डिस्कस, आई थिंक बहुत लंबा वीडियो हो गया, ये 1 घंटा हो गया होगा डिस्कस करते करते. बट इफ यू फॉलो दिस और एटलीस्ट अ ट्वीक्ड वर्जन ऑफ दिस, you will see that you are very comfortable in the month of April and May. You will see that you have revised everything at least 4 times. You will see that you have practiced a lot of questions and you have written test also, and you are very well placed as far as prelims is concerned and significantly placed as far as mains are also concerned. एक ये integrated approach लेके चल रहे हैं हम. ठीक है? That's the intent over here. तो that's about it. करना तो है यार, प्रीलिम्स क्लियर करो, मेंस लिखना बहुत जरूरी है, असली मजा वहीं पे है. और प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए जो बनता हो आप हमारे पास आएंगे तो आपकी मेहनत को हम डबल कर देंगे. वॉट एवर यू आर पुटिंग एफर्ट, वी आर गोइंग टू ऐड टू दैट एफर्ट इक्वल अमाउंट ऑफ एफर्ट. और जब 2 लोग तैयारी करेंगे एक साथ तो ऑब्वियसली सिलेक्शन थोड़ा बेटर चांसेस हो जाते हैं. दैट्स द आइडिया. ठीक है? सो think about this, think about the plan, tweak it according to yourself थोड़ा बहुत. जिसने 1-2 सब्जेक्ट कर लिए ऑलरेडी, क्योंकि वो 15 दिन पहले से या 20 दिन पहले से प्रीलिम्स की तैयारी स्टार्ट कर चुका है, बहुत अच्छी बात है, यू आर ऑलरेडी अहेड. जिसने नहीं किया है उसके लिए सफिशिएंट टाइम है. अंडरस्टैंड वन मोर टाइम, 100 days, 95 days आर मोर देन सफिशिएंट टू क्लियर प्रीलिम्स, मोर देन सफिशिएंट, आई गारंटी दैट. बट बहुत ज्यादा ऑनेस्ट एफर्ट, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन के साथ अगर आप ये 90 days स्पेंड करते हैं, स्पेशली द फर्स्ट 45 days, देन वी से कि आपका चांसेस बहुत ज्यादा है. ठीक है? Come and visit us. You can talk to me on the number that could be displayed on the screen right now. Otherwise, it is on the description below. And you can always visit us at the offline center of SmartWork Labs in Old Rajendra Nagar, Main Bada Bazar Road. And we will be happy to help you. ठीक है? लग जाओ. Best of luck. आराम से सिलेक्ट हो सकते हैं. प्रीलिम्स निकालना कोई रॉकेट साइंस नहीं है. Just these 4 steps. You do it thoroughly. अगला 1 महीना डिवोट कर दो, बाकी सब भूल जाओ. And we ensure that you will write the mains. Okay, with this note, once again, I am Anupam. If you need any help, please come to us. Feel free to come to us. Thank you very much and have a nice evening.